اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے خاندیش بلیٹن مالیگاؤں، ناسک، دھولیا، نندربار اور جلگاؤں ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر بات کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین، مالیگاؤں شہر کی ایک بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے۔ مولانا قاری عارف فلاحی نے بتایا کہ مالیگاؤں میں بھی کرائم اور جرائم رکنے تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ رات کی خبر ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 28 سال کے نوجوان سلمان احمد کا قتل کیا گیا۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ اس قتل کے دونوں ملزمین کو پوارواڑی پولیس اسٹیشن کے پولیس نے منمار سے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایسے ہی دو بڑی اور افسوسناک خبریں آ رہی ہے کہ ایک 27 سالہ خاتون نے لیڈی نے پھانسی لگا کر آتم ہتیا کر لی ہے، خودکشی کر لی ہے، اور ایک دوسرا 33 سال کا ایک نوجوان 33 ایئر کا سبھاش چوہان، اس نے بھی پھانسی لگا کر آتم ہتیا کر لی ہے۔ مالیگاؤں شہر سے یہ اس وقت بڑی خبر آئی ہے۔ آئیے اس وقت مالیگاؤں سے اور کوئی بڑی خبر فی الحال میرے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں سیدھا ناسک کی۔ ناسک سے بھی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ ناسک شہر کے پنچوٹی میں ایک ڈاکٹر نے آتم ہتیا کر لی ہے نا۔ تھوڑی سی عجیب سی خبر۔ جو شخص لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جس کا پیشہ ہی ہوتا ہے لوگوں کی زندگی بچانا، لیکن ایسے شخص نے بھی آتم ہتیا کر لی۔ ایکچوئل میں آتم ہتیا اور سوسائڈ کا رجحان لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے۔ تھوڑی بھی مصیبت آئی، ڈپریشن کا شکار ہوئے، تھوڑی سی بھی پریشانی آئی تو وہ سیدھا اپنی زندگی سے کھیل رہے ہیں، جو اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے باقاعدہ دھارمک اعتبار سے بھی ہم نے مہم چلائی جمعیت علماء کی جانب سے کہ آتم ہتیا سمسیاؤں کا، مصیبتوں کا حل نہیں ہے، پرابلمس کا حل نہیں ہے۔ زندگی کو ختم کر دینے سے سمسیائیں، پرابلمس اور مصیبتیں حل نہیں ہوتی، بلکہ جو چلا جاتا ہے وہ اپنے پریوار کو اور بڑی مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ خیر، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کہ ناسک میں ایک ڈاکٹر نے آتم ہتیا کی ہے، اور یہ جو گھٹنا ہوئی ہے کہ گھریلو پرابلم، پتی پتنی کے جو پریوارک جو سمسیا ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، وواد ہوتے ہیں، اس کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر نے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ مالیگاؤں اسٹینڈ پریسر کے دھاترک سنکل نواسی نیلیش کمار پوپٹ لال چھاجیڑ 48 سال ان کی عمر بتائی جا رہی ہے۔ ناسک سے اور کوئی بڑی خبر فی الحال نہیں ہے۔ بات کرتے ہیں سیدھا دھولیا شہر اور دھولیا ضلع کی کچھ خاص بڑی اہم خبروں پر۔ اس وقت دھولیا سے ہمارے رپورٹر یوسف انصاری عرف پاپا سر نے بتایا کہ دھولیا شہر میں ٹیچر ڈے کے شبھ اوسر پر اردو، ہندی، مراٹھی پترکار سنگھ کی جانب سے ینگ بوائز سنستھا سنچلت اردو اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر عتیق سر اور شمس الحسن سر کا زوردار انداز میں استقبال کیا گیا۔ استقبال کرتے ہوئے اردو، ہندی، مراٹھی پترکار سنگھ کے پد ادھیکاری اس موقع پر بڑی تعداد میں موجود رہے۔
आइए नाज़रीन, धूलिया से हमारे रिपोर्टर यूसुफ अंसारी सर ने बताया कि नौ नियुक्त ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नए जिला अध्यक्ष नासिर पठान के सम्मान में एक ज़बरदस्त अंदाज में इस्तकबालिया सत्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आमदार फारूक शेख साहब की निगरानी में धूलिया MIM के जिला अध्यक्ष के पद पर वार्ड नंबर 3 के सहायक नगर सेवक नासिर पठान को बिन विरोध नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद बाकायदा उनके सत्कार और सम्मान में एक शानदार प्रोग्राम भी अमल में आया। आइए नाज़रीन, ऐसे ही तीसरी बड़ी खबर धूलिया से ये भी आ रही है कि धूलिया के दारुस्सलाम में यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM हर दिल अजीज उम्मीदवार और आमदार वहाँ के लाडले चहीत आमदार डॉक्टर फारूक शाह साहब के ऑफिस में या यूँ कहिए कि दारुस्सलाम में टीचर्स डे के मौके पर टीचर्स का ज़ोरदार अंदाज में सत्कार और सम्मान भी किया गया और शिक्षक दिवस के मौके पर MIM की जानिब से टीचर्स के सम्मान में एक मजलिस भी मुनक़िद की गई। नाज़रीन, अब नंदुरबार शहर से इस वक्त कोई ख़ास बड़ी खबर फ़िलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन अब हम बात करते हैं डायरेक्ट जलगांव शहर और जलगांव ज़िला की कुछ ख़ास बड़ी अहम खबरों पर। इस वक्त पाचोरा से बड़ी खबर हमारे वहाँ से रिपोर्टर ज़ुबैर खाटिक ने बताया कि पाचोरा में कांग्रेस की एक ज़बरदस्त अंदाज में बैठक हुई, जिसमें खुद आमदार तांबे साहब इस बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे और बड़ी शानदार ये बैठक रही और बाकायदा इस बैठक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बाला साहेब प्रदीप पवार साहब खुद इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम पदाधिकारियों को उन्होंने बाकायदा एक ट्रेनिंग कैंप जिसे कहा जाए, हम उसे ये भी कह सकते हैं, इस मौके पर आमदार तांबे साहब का कांग्रेस पदाधिकारियों की जानिब से, कार्यकर्ताओं की जानिब से ज़ोरदार अंदाज में स्वागत, सत्कार और सम्मान भी किया गया। और मैं आपको बताऊं कि इस मौके पर तांबे साहब ने, प्रदीप पवार साहब ने, जिला अध्यक्ष साहब ने और तमाम लोगों ने कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू है, जाहिर बात है कि मुल्क में नफरतों का माहौल बना दिया गया, बिल्कुल घटिया तरीके से, नीच तरीके से बीजेपी लड़ाओ और राज करो वाली अंग्रेज की पॉलिसी इख्तियार कर रही है राहुल गांधी जी ने, और कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी कांग्रेस के इन नेताओं ने पदाधिकारियों के सामने और कार्यकर्ताओं के सामने बात रखी और भारत जोड़ो यात्रा को बिल्कुल मजबूती के साथ साथ दिया जाए और कामयाब बनाया जाए, भारत को जोड़ा जाए, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू की। इस मौके पर कांग्रेस ताल्लुका अध्यक्ष सचिन सोमवंशी ने भी तफसीली गुफ्तगू करते हुए कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन किया। हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनील जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा विजय असो, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा विजय असो। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत जोड़ो जिंदाबाद। आयाजी जलगांव के जामनेर शहर से इस वक्त हमारे रिपोर्टर इमरान खान ने बताया कि जामनेर में भी टीचर्स डे यौम असातिज़ा के मौके पर वहाँ की जो बहुत ही एक्टिव, बड़ी फ़ाल तंजीम है खुदाई खिदमतगार फलाही तंजीम, इस तंजीम के जानिब से भी यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा का ज़ोरदार अंदाज में इस्तकबाल, सत्कार व सम्मान किया गया। जामनेर की इस तकरीब में हामिदुल्लाह खान सर, अंजुमन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जामनेर और मजहर अली सर, जिला परिषद उर्दू स्कूल फतेहपुर, इन दोनों को मिसाली टीचर अवार्ड, सपासनामा और सनद देकर इनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया। आइए नाज़रीन, जामनेर से ऐसी दूसरी बड़ी खबर इमरान खान ने भेजी है कि जामनेर में महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन ने मंत्री गिरीश महाजन, वजीर गिरीश महाजन को एक मकतूब दिया, एक मेमोरेंडम दिया और डिमांड किया, मुतालबा किया कि उर्दू मीडियम स्कूलों में कई सालों से खाली आसामियों को पुर किया जाए। वफ्द ने मुतालबा किया है मंत्री जी से, क्योंकि गिरीश महाजन साहब खुद जामनेर शहर के रहने वाले हैं, वहीं के
से उभर कर आज वो महाराष्ट्र के सियासी तारों में एक बड़ा तारा है, चमकता दमकता सितारा है और बाकायदा आज वो बड़े ओहदे पर बैठे हैं। इसलिए महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन ने उनसे एक बड़ी उम्मीद लगाई है और उनसे ये डिमांड किया है कि उर्दू मीडियम स्कूलों में कई सालों से जो खाली असामियां हैं उनको पुर किया जाए। इस मौके पर इस संगठन के रियासती रुकन, जिली सदर और जिली नायब सदर, दीगर असातिज़ा और सियासी शख्सियात मौजूद थी। आइरादी जलगांव शहर से भी खबर आ रही है कि इक़रा एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जारी इक़रा उर्दू हाई स्कूल सालार नगर जलगांव में भी सदर मुदर्रिस डॉक्टर हारून बशीर शेख साहब की सदारत में यौम असातिज़ा तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर दोनों सेशन के तदरीसी और गैर तदरीसी फ़राइज़ निज़ामुल औक़ात के मुताबिक 10वीं जमात के तलबा व तालिबात ने बहुस्न खूबी अंजाम दिए और इस मौके पर एक शानदार जानदार सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया, जिसका आगाज दानियाल देशमुख की तिलावत कलाम पाक से हुआ। अयरदीन जलगांव जिले के रावीर से हमारे रिपोर्टर शरीफ सर और वहाँ से हमारे दूसरे रिपोर्टर जाकिर खान ने यह बताया कि रावीर में एक शानदार प्रोग्राम हुआ मराठा बिरादरी की जानिब से। मराठा बिरादरी ने मेरिट के स्टूडेंट, मेरिट तलबा की हौसला अफजाई की। ये शानदार प्रोग्राम जो है वहाँ पर रावीर शहर के स्टेशन रोड से मुत्तसिल मराठा मंगल ऑफिस है, वहाँ पर मराठा बिरादरी की तरफ से ये मुनक्किद किया गया और स्टूडेंट्स की और अतिया दहिंदगान की तस्वीरी नकाब कुशाई का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत खंडवा लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट दिनेश्वर पाटिल ने इस प्रोग्राम की अध्यक्षता की, सदारत की और मेहमान खुसूसी के तौर पर और भी मेहमानान तशरीफ लाए थे। चंद्रकांत पाटिल साहब, अरुण पाटिल, साबिक जिला परिषद रंजना पाटिल वगैरह इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। गोपाल दर्जी, शिवसेना तालुका सरबरा प्रवीण पंडित, डॉक्टर एस.आर. पाटिल, जीएस डायरेक्टर नीलेश पाटिल, सुपान पाटिल और भी बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में मौजूद रहे और इस मौके पर स्टूडेंट्स की जबरदस्त अंदाज में सत्कार और सम्मान करके उनकी हौसला अफजाई शील्ड वगैरह देकर की गई। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त जलगांव जिले के तोंडापुर से आ रही है। जी हाँ, तोंडापुर में भी इक़रा एजुकेशन सोसाइटी का एक बड़ा तालीमी इदारा है, इक़रा उर्दू हाई स्कूल तोंडापुर। वहाँ पर भी बड़े जोशो खरोश के साथ यौम असातिज़ा का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर इक़रा एजुकेशन सोसाइटी के रूह रवा डॉक्टर अब्दुल करीम सालार ने बात करते हुए, खिताब करते हुए ये कहा कि मुअल्लिम, टीचर, एक शिक्षक दुनिया में देने के लिए आता है, लेने के लिए नहीं। और असातिज़ा के खिदमात को भी उन्होंने सराहा और इल्म, तालीम, एजुकेशन और मुअल्लिम की खिदमात को सराहते हुए बहुत सारी अहम बातें उन्होंने तलबा के सामने पेश की और तमाम ही सोसाइटी के जिम्मेदारान को भी मुबारकबादियाँ और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।